You like cleanliness, you like to be organized in your home in that manner. So why I'm so tired कि I'm not able to cook, yeah, I'm not able to do certain other course in the life. People are very casually saying I'm depressed. But do you think this casual use helps they normalize the mental health conversations? That is a synonymous of sad. So the people does not know what is sadness and what is depressed. मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? हाउ कैन आई एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि यस नाउ इट्स टाइम टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड गेट डायग्नोज्ड प्रॉपर्ली? स्पेशली विमेन बहुत इग्नोर करती हैं, बहुत अपने आप को प्राउड फील भी करती हैं कि मेरे को आजकल अच्छा नहीं लगता है, रादर देन गोइंग फॉर द सोल्यूशन. हाउ कैन वुमेन एम्ब्रेस द मेनोपॉजल फेज as a turning point rather than a decline? हर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, हर रिसाइलेंट वुमन और हर फैमिली जो अपना बैलेंस पा रही हो, उनके पीछे अक्सर एक क्वाइट गाइड होती है. पिछले 25 सालों से डॉक्टर ईला गुप्ता वही गाइड रही हैं. PhD इन साइकोलॉजी, इंटरनेशनली ट्रेन थेरेपिस्ट, फाउंडर, मेंटोर और अवार्ड विनिंग काउंसलर. उन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की है उन लोगों का सेल्फ एस्टीम रीबिल्ड करने के लिए, एंग्जाइटी से ओवरकम करने के लिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ दोबारा डिस्कवर करने में हेल्प करने के लिए. हर वर्क स्पैन्स फ्रॉम क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स, always with one purpose: to create emotionally strong individuals and empowered women. So today we sit down with a woman whose life's work is healing, leadership and transformation. Welcome Ila ji. Thank you for coming on this podcast. Thank you very much again, Nimisha, for calling me here, because mental health is a subject where the people does not like to talk. So it is a kind of networking I'm going through you. So I'm really grateful and obligated that you have invited me. So these days, a lot of people Google their symptoms before seeking a professional help. So how has been your experience in counseling such self-diagnosed patients? See, it is very good nowadays. We are in a best part of the technology at this age. We have everything in our hand in a form of mobile or the laptops. And even any confusion comes, so we just Google it and we get the answer. The people who does this kind of Googling to find out their symptoms, it is good. They'll come to know that they are having certain kind of symptoms and they need to counsel. So that is very positivity in that I see as a counselor, because then only they get to know the seriousness of the problem which they are facing, and they come to us to take the help. Before that, they just think that it is okay to be like this, because the mental health, if you talk about, the people don't take it seriously. They just think कि नहीं ऐसा ही होता है. Like if someone is getting angry, so they think कि मुझे तो गुस्सा आता ही है, मेरा नेचर ऐसा है. You got my point? So that is continuously, unless and until that particular person realize नहीं मुझे तो गुस्सा, it is not normal to be get angry in such a small thing. Then the person search the Google and then they come to know, no, it is not normal. So I need a help. Authentically they get satisfied कि yes, मुझे पक्का जाना है डॉक्टर के पास, and I must go to the doctor. So you're the first doctor actually supporting this, that okay, it's totally okay if you're Googling your symptoms and still then you coming Because, to me. it is a mental health. Right. If you talk about the mental health, it is still the people think कि हमें सब पता है, हम ठीक कर लेंगे. और बहुत सारे लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं अभी, और उनको लगता है कि हम थोड़ा बहुत बताएंगे और व्यक्ति ठीक हो जाएगा. पर वो दैट इंडिविजुअल itself, herself or himself knows what he or she is going through. तो वो पूछता है, बताता है, बट जब वो खुद देखता है कि ओके, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट OCD, obsessive compulsive disorder. So in that, the thought keeps on
कमिंग इनटू द ब्रेन. तो उसको लगता है नहीं, मुझे तो सफाई बहुत पसंद है. इफ़ इट इज़ ऑफ क्लीनलीनेस, तो इट इज़ pretty normal to clean the house if the lady is there or even the gents are there. It is pretty normal. I like to my home, my office to be well organized that way. But उसके दिमाग में वो थॉट बार बार आ रहा है, तो सब लोग बोलेंगे भी तो द एवरीवन no, it is pretty normal. You keep your room very clean. You are very smart. You like cleanliness, you like to be organized in your home in that manner. So she gets a compliment, but in her mind she gets tired of doing those things. Then she searches ki why I'm getting tired. If I'm doing such a good job, why I'm so tired ki I'm not able to cook, I'm not able to do certain other course in the life. Then she or he can search Google. Okay, then they come, okay, this is not normal. So they will not tell it to anyone, but they go to the doctor to get it done. So it is very good thing in the mental health, and the things online information is playing very, very important part of it, and the people are getting aware of it, and they are coming and becoming all right after taking therapies or the medication. So these days what we're seeing that people are very casually saying I'm depressed, this word. So and when they're sad or upset, anything. But do you think this casual use helps they normalize the mental health conversations, or it affects who are like actually going through it? Yes, many a times in a day we say I'm very depressed. Yes, that is a synonymous of sad. So the people does not know what is sadness and what is depressed. They are just using tensed. I'm very tensed. I am overwhelmed. I am depressed. I am overworked. I am sad. So they are using these words nowadays a lot. People are using, and it is really conflicting the person who is having real this depression with the person who is having little sadness due to the external situation. But again, I say ki when they say, they take help as well, and they'll come to know ki it is not the medical depression, it is a situational depression by which the people are taking that. So but then हम डॉक्टर के पास जाते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स लेके जनरली. सो बट मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? हाउ वन एक्चुअली कम टू नो अबाउट देयर सिम्टम्स? हाउ कैन आई एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि यस नाउ इट्स द टाइम टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड गेट डायग्नोज्ड प्रॉपर्ली? व्हाट इज दैट फर्स्ट सिम्टम दैट एनीबडी कैन figure it out themselves? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैम आपने पूछा. हम फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, इफ़ मेरे पास जितना भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, या पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, तो अगर मुझे सर में दर्द है तो मैं सर दर्द की दवाई मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में होती है, मैं ले लेती हूँ. या मेरे बच्चे को या किसी भी फैमिली मेम्बर को कुछ प्रॉब्लम होती है, स्टमक एक या हल्का सा बुखार होता है, तो हम ले लेते हैं दवाई, हमारे पास घर में होती है. हम फिज़िकल डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर के पास भी, मतलब फ़िज़िकल इलनेस के लिए तब जाते हैं जब हमारे से वो चीज़ सहन नहीं होती है. आप नोटिस करिए, जैसे अगर अभी एक केस था, मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हुई, कि दैट लेडी वॉज सेइंग मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है. शी वॉज हैविंग बरालगन और थोड़ी बहुत की एसिडिटी है, तो उसकी दवाई ली, या स्टमक अपसेट है, तो ऐसे करके. बट वो स्टोन का दर्द था. जब वो बहुत अनबियरेबल हो गया, परिवार वालों ने फिर उसको डॉक्टर को लेकर गए एंड उसका फिर गॉल ब्लैडर रिमूव किया. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं कि हम फिज़िकल बीमारियों के लिए भी जब हमें वो परेशान कर जाती हैं, वी गो, तब तक हम अपनी stretch it. Yes, we stretch it. स्पेशली इंडियंस हमारे सोसाइटी में शायद ये है. और मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहूँगी, स्पेशली विमेन,
बहुत इग्नोर करती हैं और बहुत अपने आप को प्राउड फील भी करती हैं कि मेरे को आजकल अच्छा नहीं लगता है. रादर देन गोइंग फॉर द सॉल्यूशन दे टॉक अबाउट आई एम हैविंग बैक एक, हेडेक, नॉट एबल टू डू वर्क, मेरे को लेटे रहने का मन करता है, जब तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ, तो उसमें भी यही है निमिषा जी कि जब व्यक्ति को लगता है, जैसे मैंने अभी आपको ओसीडी का एग्जाम्पल बताया कि लग रहा है साफ है, बट उस सफाई को करने के बाद व्यक्ति को लगता है कि मैं थक चुका हूँ, मतलब मैं अब कुछ नहीं कर सकता. That person is taking 2 hours in the bathroom, then again for the cleaning of the house. As soon as that person is getting up, जैसे मेरे पास एक केस है, दैट कपल, तो वो हस्बैंड बोलते हैं, वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वेरी यंग कपल, तो दे हैव अ वेरी स्मॉल हाउस जैसा उन्होंने मुझे बताया. तो वाइफ जैसे ही सुबह उठती हैं वो झाड़ू लेके आंगन धोने लग जाती हैं. तो शुरू में लगा ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पानी तो उसी लिमिटेड टाइम पे आता है, बट बात ये यहाँ पे जब बढ़ी कि जैसे ही वो बाथरूम में जाते हैं उनके हस्बैंड, तो वो उसको स्टॉप करके झाड़ू लगाती है बाथरूम में. फिर जब वो नहा के निकलते हैं तो जनरली हमारे बाथरूम के बाहर हम एक मैट रखते हैं ड्राई करने के लिए, तो वो कहती है इस पे मत खड़े हो, गंदा हो जाएगा. फिर उसको साफ करती है, फिर वो खड़े होते हैं, फिर उसको वो रोज़ धो देती है और उनको कहीं खड़े नहीं होने देती, यहाँ मत खड़े हो, इधर मत आओ. या वो जब ऑफिस से आते हैं तो गेट छू लिया अगर उसके हस्बैंड ने, तो वो गेट को धोएगी पहले, फिर उनको चाय बना के देगी, और वो इसी काम में थक रही है. तो ये इस तरह की जब सिचुएशन होती है तब लगता है नो, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये बढ़ गया है, सिग्नल है. तब लोग डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और क्योर करते हैं. इसमें रिलेशनशिप में भी होता है, जैसे ओसीडी इज़ नॉट ओनली क्लीनलीनेस, ये बहुत तरह में होता है. जैसे कोई ब्रेकअप हुआ तो शुरू में लगता है कि हमारा सैडनेस है हमको क्योंकि ब्रेकअप हुआ है. सपोज दैट पर्टिकुलर बॉय वॉज इन लव और वो ब्रेकअप हुआ, तो लगेगा 2-3 महीने क्राइंग स्पेल्स, नींद नहीं आना, रोना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है. इट इज़ प्रिटी नॉर्मल. बट अगर ये 1 साल तक एक्सटेंड हो रहा है और दिमाग में वही थॉट्स आ रहे हैं, सो देन अगेन इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू ओसीडी. ओके. तो दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग नॉर्मल, वो रो रहा है, वो लोनली फील कर रहा है, उसको वही बातें याद आ रही हैं, वो ढूंढ रहा है उस व्यक्ति को, या उसका व्हीकल का नंबर ही देख रहा है सड़क पे चलते हुए. तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, सो दैट इज़ ओसीडी. तो उसको खुद से लगता है नो, ये मेरे से ठीक नहीं हो सकता, तो आई मस्ट गो टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. दैट इज़ That's an eye-opening for us to understand that something like this also is considered as an OCD when you have a breakup. Generally, it's supposed to be like, with cleanliness, or maybe we find, few people who are way too organized in terms of their clothes or their stuffs where it's been kept, in that manner. But yeah, that's an eye-opening for us. OCD can be many types. Right. कुछ लोगों को होता है कि ऑब्जेक्ट्स टेढ़े नहीं रखे होने चाहिए, उनके पर्टिकुलर वे से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए. दे गेट इरिटेटेड. सम पीपल आर शॉपहोलिक्स, कि वो पैसे हैं तो वो जाके जैसे मेरे पास एक केस था, तो इफ़ शी हैज़ मनी, तो इफ़ शी इज़ बाइंग वन सलवार कमीज़ या एनी ड्रेस, तो शील बाय ऑल द कलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रेस. तो सपोज वो दुकान से पूछेगी दुकानदार से कि हाँ अच्छा इसमें ग्रीन है क्या, येलो है क्या, तो ऑब्वियसली शॉपकीपर से हाँ है, तो इसमें कितने का, ब्लू है, मतलब सेम डिज़ाइन, तो शील से सारे दे दो, मतलब 6 दे दो, 12 दे दो.
So that is also OCD. हिप्नोथेरेपी क्या होती है और ये क्या नॉर्मल थेरेपी से कुछ अलग है एंड हु शुड गो फॉर इट? हिप्नोथेरेपी होती है हम जब उस किसी का जो माइंड है, दिमाग है, उसको जो भी ये थेरेपी दे रहा है उसके अंडर कंट्रोल करते हैं उसके थॉट्स को। इसलिए करते हैं कि कई बार हमारा जो पर्सनालिटी होती है, स्पेशली इन अ केस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, और द पर्सन इज हैविंग साइकोटिक किलर or something related which is harming society, तो उनको हम hypnotherapy देते हैं to find out the reason why that particular act that person is doing it. So that is hypnotherapy. And what you were asking? About this hypnotherapy only, like, you know, how And, one should go, who should go for it basically? Who should go? That person is having some thoughts about which is making him or her very, very uncomfortable, and it is harming society. So that person must go for the hypnotherapy, and the people do it. The doctors or the recommend this for the but I must say that normal person should not go for it. Right. Because hypnotherapy is for a particular period of a time. Like for an example, it up to the person. It can be for a week, it can be for a 10 days, it can be for a month. Then again that mind come out of that particular, and then again you start doing that activity which was hurdling your becoming obstacle in your day-to-day life. So hypnotherapy is a very large therapy, and the person who is taking that person should have full faith on the hypnotherapist. Otherwise it will not work. So have you noticed any difference between the Gen Zs and the older generations when they talk about their mental health? Have you come across something Oh yes, very different? they are very aware Gen Zs, and they know what to do. They are very clear, and if they have any thought of taking help, they just come. They never given a thought कि नहीं जाना चाहिए, हम खुद से ठीक कर लेंगे या हम गूगल करके कुछ ट्राई करेंगे. नो, they are very practical, they are very clear, and they are very committed in their thought process. Whereas the other generation, they are confused whether to do, because like if you talk about me, we never allow us to take all the decision by ourselves. We always look up to someone. Like when we were young, so we used to ask everything from our parents. ये कर लें क्या? ये ठीक होगा क्या? Then they will ask someone else, friends, family. ये बोल रही है, कर ले क्या ये? तो हम क्या देख रहे हैं सब unconsciously कि हमारे parents तो हम is everything, but they are themselves are asking from their relatives or anyone. So it used to be like the whole community was deciding for you in a way, kind of. So we grew up in this manner. तो जब हम बड़े हुए तो हमें भी लगा कि मैं अगर if I am saying something तो ठीक है क्या? तो हम हस्बैंड से पूछ रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, तू बता ऐसा होगा क्या? But on the other hand, our younger generation, no. ये करना है, ये करना है, ये करना है. No complication. So previous generations often stayed in long careers and marriages, what we've seen. While Gen Z is more fluid these days, which they call themselves, with jobs and relationships. How does that shift has affected, like, you know, their sense of identity and stability now? Like if again, in our period of a time, हम लोग के time, marriage is the ultimate goal in one's life. कि marriage means settled. No matter after getting married how much struggle that couple faces, it is not always that every couple has a rosy bed of roses, but sometimes they do struggle. Maybe it can be a woman or a man. You can talk about the job, business, financial, emotional, but they keep carrying that relationship and they accept that this is only the life.
If the struggle is there, this is only the life, this is my destiny, and I have to. Even from inside एक आवाज आती थी, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, पर बाहर से हमें लगता था नहीं 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 ये ठीक है. चाहे वो फैमिली हो, कभी मेरे पास बहुत सारे आते हैं बहुत टैलेंटेड की शादी हो गई, क्योंकि उस टाइम शादी ही होनी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग. पर अभी these younger crowd will say कि पहले हम सेटल होंगे, श्योर अबाउट आवर सेल्फ, कि हम अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस, अपने गोल्स को अचीव करें, and then we'll settle down. then we need a partner. They need a partner. They need a friend. They don't need a person, be a woman or a man. They both are now financially independent. Earlier Yes. it was like that women is totally dependent upon the men for finances. Right. But nowadays the women is equal or more than the men nowadays. So no financial, they don't need financial security, they need emotional support. Ki our vibes are matching, we are having good standard of a living, we plan everything whatever our liking. So that is the reason this concept is changing now, and it is good, I think. No, definitely. And on that note, I wanted to ask you that, as you said, these days women are getting more financially independent. So, but is our generation ready for that? Are men ready for it? Yes. Are they emotionally that well Yes. equipped to handle Yes. financial independent women now? Yes. Our new generation, those who are in after 30s, Right. boys, they want their women to be independent, they want their women to be working, educated, they want partner, they don't want wives. They have that concept because I keep talking with them. Yes, definitely. They look up to them for everything. Suppose for an example, if they're going shopping पे जाना है, so they call the husband, आज मुझको shopping पे जाना है, चलोगे क्या आप? Here the boy wants, नहीं, you should have take the decision of for the big things or whatever. You do your things, I do my things, but we are together in every respect. So they need partner. जैसे एक business होता है, तो सपोज मैं और निमिषा बिजनेस करते हैं, तो यू आर 50% पार्टनर, तो वी पुट आवर व्यूज आइडियाज टुगेदर एंड देन वी रन द बिजनेस एंड टेक इट टू द पर्टिकुलर हाइट. सो दैट इज व्हाट द टुडेज मेन वांट्स. But then we are seeing that many young professionals are like, prioritizing their careers only. We keep saying that, ये तो career के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, and independence. And traditional families, it's really difficult for them to understand that why my son is not settling, why my daughter is not ready to settle down. So, but how does it actually impact the emotional well-being for both the generations, I would say? Because if any tip or any advice you can give to them, have faith on your children first of all, because we are very good parents. मैं ये कहती हूँ, we have not seen the God. हमने तो भगवान नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, बट हमने माता पिता देखे हैं. तो हम सब जब पेरेंट्स बनते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें. कई बार हम तो बेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें एक ये भी आती है चीज़ कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दें, देन द वर्क, दे शुड गेट द बेस्ट बिजनेस और अ जॉब, वॉट एवर द चॉइस, बी अ गर्ल और बी अ बॉय. देन रिलेशनशिप. तो पेरेंट्स को लगता है कि ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खत्म हो जाती है, दे कैन लिव. और ऑन द अदर हैंड हमारे जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हम बहुत बेस्ट करें, लाइक आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, सो आई शुड ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और आई वांट टू बी अ डिज़ाइनर, तो आई शुड गो एंड एक्सप्लोर different exhibitions, fashion shows, or even if
the person like me, psychologist, if you talk. So I should go all around the globe to attend various conferences or to do certain courses. Then I will get settled. So here both are right. So we must see, every family is unique. Every family has a different strategy, Agreed. mindset to live. So both the parents and the future generation must have communication, because nowadays the children needs logic reasoning. Right. So if you give them the logic reasoning why you want your son or a daughter to get married, they will surely consider. And Agree. same to the younger generation also. If they really wanted to do certain things in their life, go ahead and do it, but reason it, show the result to the parents. It is not you just killing time कि हमें ये करना है. ये आपने बहुत सही बोला, क्योंकि हमारी जनरेशन ये थी कि भी हमारे पेरेंट्स ने बोला है तो सही होगा, हम उसको फॉलो करते रह गए. बट आज की जनरेशन दे वांट लॉजिकली इफ यू टेल देम दैट दिस इज, इसके करने से ये होता है, इसके करने से नहीं, ये करने से नहीं ये चीज़ होएगी, सो नाउ चॉइस इज योर्स, देन दे गेट रेडी. अदरवाइज आप लॉजिक बताइए उनको, तो वो लॉजिक पे उसका रिजल्ट बताइए. जैसे सपोज एनी गर्ल, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर for an example, and she's 28, 29. So we can tell her, see, you are already 29. No, it's better for you to get married. You can start your practice or a job wherever you get married, because your biological clock is becoming slow. So that is a very good reason. Then the girl herself, who is very educated, be a medico, so she understands, yes, that is. And one thing more, marriage is not an obstacle. Marriage is a comfort zone. You get the partner who can support you and loves you, take care of you, pamper you. So it is a part you can do very nicely your struggle when someone is backing at you. But I guess for that we have to change our narratives in and around the society, when we stop saying that शादी के बाद ये कर लेना, शादी एक बार मस्ती कर ले वरना शादी हो जाएगी तो फिर ये नहीं कर पाएगी. Because ये हमारे आसपास की सोसाइटी में हम बोलते हैं, knowingly unknowingly we start saying something like this. Yes. So we say, क्योंकि ये एक लैंडमार्क है. जैसे हम बोलते हैं ना, स्कूल के बाद तुम कॉलेज जाओगे, फिर अपने मर्जी से कुछ भी ड्रेस पहनना या क्लासेस अटेंड नहीं करना. राइट. फिर हम जब कॉलेज में होते हैं तो हम बोलते हैं अभी रुको, जब तुम जॉब करने लग जाओगे ना, तब तुम अपने मर्जी से खर्चे करना या अपने मर्जी से शॉपिंग करना. फिर जब बच्चा जॉब करता है तब हम उसको बोलते हैं रुको अभी थोड़ा सेव करो, शादी होगी ना तो फिर देन यू डू इट. फिर जब शादी हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं एज अ पेरेंट कि नहीं रुको, अभी घर खरीदना है, बच्चा करना है, तो तुम्हें उसके लिए सेविंग. देन तब वो बच्चा बोलता है मैं कहाँ हूँ. एवरी टाइम देयर इज अ गोल. Agree. So इसी बात पे मुझे बताइए, have you heard about this word hustle culture? Right. So do you think it's sustainable या हम actually burnout की तरफ जा रहे हैं? In what sense? In sense of everything, where we're just trying to running into that rat race. If you're running for that, घर पे भी हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, because social media has now made us more visible also in that manner. So everybody wants to be very perfect in their lives and running for it. Be it business, they want being number one. Definitely it's good, but आप professionally भी आप कोई काम कर रहे हो या whatever work you're doing in whichever corner and whichever, I feel like men, woman, girl or boy in anything. So in that manner, I wanted to ask you कि आपको क्या लगता है कि are we towards, that is very true. are we I running? fully agree that we want to be very perfect whatever we are doing, but human beings are never perfect. Even our gods are not perfect. They did mistakes. If you talk about any god, हम जिसकी भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो शिव जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, they were not perfect. So how can we perfect? Perfectness takes you stressed, depressed,
and sometimes led to psychotic disorder. So stop being too perfect. That is all we can say. Right. So I'll talk about diversity and inclusion. If you're comfortable, let me know that how do you approach counseling with someone who's struggling with acceptance of their own identity, be it LGBTQI plus also. If they are conflicting with their own identity, so I always tell them to accept their identity. And I did it. Many cases are there where they have changed their genders and they accepted, even their family members accepted that. It is better because it is very suffocated. It is very difficult for them to focus anywhere. If like suppose I'm a girl and I'm feeling like a boy, so it is really very difficult for a person to focus in their life. So I tell them to accept whatever you are, accept it and move ahead. So for this, do you recommend a family therapy, not just for that person who's going through that identity Yes. shift, but because the whole family needs to get involved with this. Yes. The acceptance has to come Acceptance, from family. from within first. बट आई मस्ट से दैट निमिषा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस में लाइक छत्तीसगढ़ में के आसपास के जहाँ पे खुद फादर डॉटर को लेकर मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि शी इज़ सफरिंग, मैम प्लीज़ हेल्प हर, और हमने हेल्प करी. आज वो लोग बहुत खुश हैं. ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस. That's nice to know that people are opening about Yes. it, because it's just not metros, but here also in small cities, also tier 2 cities also, they're Yes. accepting it. Yes. इसी बात on a lighter note, have you can you tell me some strangest thing a patient has ever told you, or probably has come to your session which you found it very strange? Many things, I think. निमिषा, हम काउंसलर्स के पास लोग आते हैं तो स्ट्रेंज चीज़ें ही लेकर आते हैं जो सोसाइटी में बहुत ही ऐसी मानी जाती हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है. तो मेरे पास रोज ही ऐसी चीज़ें आती हैं. एक दो अगर आप बता सकें तो. एक दो कोई केस ऐसा या बहुत peculiar सा था, but then you were able to help him out, or maybe some case where for people it's not a big thing, but for that person it was for the patient was a big thing, and then यही रिलेशनशिप में बहुत होता है ऐसा, जो मैं आपको OCD का बता रही थी कि जब हमारे ब्रेकअप होता है तब पर्सन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और हमें लगता है कि नहीं, ब्रेकअप ही तो हुआ है, जैसे आज की जनरेशन की, मूव अहेड, गो अहेड विद समवन, और वो धीरे धीरे OCD में कन्वर्ट हो जाता है और वो पर्सन किसी को बोल भी नहीं पाता है. वो सबके सामने नॉर्मल है और बट वो अंदर से इतना टूटा है कि उसको नींद नहीं आ रही है, उसके क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं, वो रो रहा है और बहुत चीज़ों में उसका मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा, बट सबके सामने वो एकदम नॉर्मल. परफेक्ट है. सो लेट्स टॉक अबाउट आप और हमारी उस दिन जो बात हुई थी मेनोपॉज को लेके, जो सबसे बड़ा टॉपिक है. हाउ कैन वुमेन एम्ब्रेस द मेनोपॉजल फेज एज अ टर्निंग पॉइंट रादर देन अ डिक्लाइन? बिकॉज बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मेनोपॉज को एक रुकावट के लिए देखती हैं और एक नए रूप में उसको कैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें. वी हैव अ डिफरेंट मैं हर मेल लेडी को बोलती हूँ कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस आते हैं. लाइक व्हेन वी आर यंग, वी आर बेबी गर्ल्स. सो अगेन एट द एज ऑफ 10 or 11 or 12 nowadays, the changes start come. We accept it. थोड़ा सा confusion होता है. बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एंड मेंटल स्टेट भी चेंज होती है. देन वी गेट मैरिड. तो द फर्स्ट एनकाउंटर विद द फिजिकल रिलेशन, दैट ऑल्सो चेंज आवर माइंडसेट इन आवर बॉडी. वी एक्सेप्ट. देन फर्स्ट डिलीवरी, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस and it is unique. Every woman has her own story to share. We accept.
Then comes 40, where the women start looking here and there with the grace, education, experience, and sometimes power. Power in a sense, she has a base, be a professional life or it can be a personal life. Base is there. Then the last change comes. It is not last, but then again change come. What you are talking about, menopause. The body again changes. Mental status change. Sexual desire change. Libido comes less. After this, mood swings are there. तो मैं हर वुमेन से कहती हूँ, हम जब से पैदा होते हैं तो हम हर चीज़ को फ्लो में लेते हैं. तो ये भी तो एक जीवन का एक बहुत ही सुंदर रूप है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस हैं. आपने जीवन के बहुत सारे रंग देख लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो. तो आप तो उस टाइम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं. पर कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई. तो उसमें एक कम होता है तो एक ज़्यादा होता है. तो मैं हर वुमेन से पूछती हूँ, बाकी चीज़ें तो कितनी सारी मिल गई जो शायद हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो ये एक ही चीज़ तो कम हो रही है. तो क्यों ना हम इसको भी एज अ वाटर फ्लो, हम इसको भी एक्सेप्ट करके. अब एक्सेप्ट कैसे करें? हमें सबको पता है ये स्टेज आने वाली है. जैसे हमारे पास जब हमारा पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमारे स्कूल में या हमारे पेरेंट्स, मम्मी हमें एजुकेट करती हैं, देखो ऐसे होगा तो ऐसे हो तो तुम ऐसा करना, घबराना मत. या हम नहीं बता पाते तो हम कोई मूवी दिखाते हैं जिससे पता चलता है. तो गर्ल इज प्रिपेयर्ड. यहाँ तो हम 40-45 के हो गए तो हमें पता ही होने वाला है. तो वाई नॉट टेक हेल्दी हैबिट्स, फॉर एन एग्जाम्पल मल्टीविटामिन्स बिफोर हैंड, ड्रिंकिंग वाटर, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, not putting weight, small things, right. Not big enough. Right. कोई हॉबी जिसको हम हमेशा सोचते हो करने के लिए, जिससे यू फील हैप्पी. तो ये हमारा मन एकदम भरा रहेगा अगर हम ये करेंगे. तो इधर कुछ कम भी होता है तो वो 1-2 साल हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं. अगेन क्योंकि हम ब्लेम गेम में हमें मज़ा आता है. Yes, blame. So हमें लगता है कि ठीक है, because this is like, you know, I'm having hot flashes, okay, this is menopausal, okay, I'm having mood swing, this is menopausal, but we don't want to do anything on that. And it is very surprising. मैं कुछ बहुत सारे women को भी जानती हूँ, या ऐसे even for their monthly charms they say today is my second day ना, तो I won't be able to do that. तो I would just look at that कि ये तो बड़ा साधारण सी चीज़ है. Yes. मतलब how can we are making ourselves vulnerable. Right. तो हमारा दिमाग बहुत चालाक है. कुछ जीवन में कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा क्लेवर हमारा दिमाग है. ये ना बड़ी जल्दी चीज़ों को ले लेता है. जैसे ही मैंने कहा कि मेरे को ना ऐसा होता है, तो वो बार बार हमको रिपीट टेलीकास्ट में हो जाता है. टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगा और कंटिन्यूसली इतना ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कि हम सही में वैसा फील करने लग जाएंगे और वो हो जाएगा. तो ये एक विमेन का कह सकते हैं स्पेशलिटी है जो अब हमें उसको. But we should break that. We must break that. We should accept that it is pretty normal to get pregnant, to have monthly charms, to little bit of backache or a stomach ache or menopause. These are all phases of a life. जैसे पानी होता है ना निमिषा, गंगा निकलती है गंगोत्री से,
पतली सी ये रहती है धार। ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि यही गंगा जब बनारस जाएगी तो उस पे पानी के जहाज चलेंगे, आप सोच पाएंगे? नहीं। यही गंगा है पूरे यूपी का, यूपी को सबसे फर्टाइल लैंड है, ब्लैक सॉइल है पूरे देश में। तो वो गंगा पूरा पानी देती है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, और वही गंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में गिर जाती है छोटी सी वो बन के। तो जब एक ईश्वर की बनाई हुई चीज़ इतनी चीज़ों से गुजर के निकल रही है, तो हम भी तो ईश्वर के बनाए हैं, तो हमें तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए कि थैंक्स गॉड एक फेज ख़त्म हुआ, देन द सेकेंड इज कमिंग, दैट मीन्स आई एम मैच्योर। But abhi to we have started talking about menopause, and society among friends also we have started talking about those things. But मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे एक रिचुअल होते हैं भाई, आप मंथली या 6 months पे आप अपना चेकअप कराते हो। सो अगर what you said is right कि start eating correctly, start exercising properly, which will help to get through your menopausal stage. But don't you think again a family gets involved when a woman goes through something like this? So the other members also needs to understand that she is going through something like this. She is right now vulnerable, or probably she is not feeling to herself. So you also need to identify. तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 monthly में भी एक ऐसा फैमिली एक थेरेपी चेकअप काउंसलिंग सेशंस तो ज़रूर होने चाहिए। गवर्नमेंट को उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कर देना चाहिए। और या फिर अगर ना भी करे तो कुछ हमारा एक पर्सनल, हर जगह गवर्नमेंट या हर जगह प्रोफेशनलिज्म नहीं आता, ये एक यूनिक फैमिली है। तो उसमें जो वुमेन हैं, जैसे अगर वो अपने हस्बैंड को पहले से बता सकती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेन को भी मेनोपॉज होता है और वो बहुत तकलीफ से गुजरता है, पर चूँकि वो मेन है तो वो कभी बात नहीं करता है। हम विमेन हर चीज़ की बात करते हैं, बट ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है कि मेन भी इन सब चीज़ों से निकलते हैं, एंड दे नेवर टॉक। So how to identify their symptoms? It is same, they become mood swings, less libido, not focus, getting angry, not sleeping. At the age of 50 to 55 they have, and बाल थोड़े से, फेस चेंज होता है, स्किन लूज होती है। Okay. Men also suffer. So what is one everyday ritual you will recommend for women or men, now that you're saying that they also go through that menopause, balancing when their like career restarts, like family or health in midlife? Communication. Okay. Healthy communication. Rather talking about the difficulty, they must talk about the solution, because difficulty is everywhere. एवरीवेयर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम प्रॉब्लम की बात ना करें, हम सॉल्यूशन पे बात करें, तो आई थिंक कि हम लोग बहुत अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं और ओपन रहें, कमिटेड रहें। पर्सनल आपके ऊपर मैं पूछना चाहूँगी दैट कैन यू टॉक अबाउट सम रिवॉर्डिंग मोमेंट्स व्हेन यू से यस दिस इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग माय थेरेपी सेशंस फॉर माय पीपल? सो ऐसे रिवॉर्डिंग मोमेंट्स कुछ ऐसे, दैट्स यस दिस इज़ व्हाई आई डू इट। बहुत सारे हैं, कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो लोग मुझे इतना मानते हैं कि कोई पैर छू के जाएगा, कोई गले लगाएगा। आज का भी बहुत रिवॉर्डिंग मोमेंट है कि आपने मेरे को कहाँ से मेरे लिए पता किया और आपने मुझे इतने अच्छे पॉडकास्ट में बुलाया। तो मेरे लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि आपके थ्रू मैं मेंटल हेल्थ की नेटवर्किंग कर रही हूँ, और जितने भी लोग सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, तो मुझे लगता है यू आर द चैनल
कि वो मेरे पास आएंगे मेरे से हेल्प लेने, तो शायद मैं उनके जीवन में कुछ खुशियाँ भर पाऊंगी। छत्तीसगढ़ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि आप क्या क्या कर रही हैं छत्तीसगढ़ की औरतों के साथ में? बिल्कुल, मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ महिला चेंबर की प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ, जिसमें जो चेंबर है वो सरकार और महिला व्यापारियों के बीच में पुल का काम करता है। कोई भी महिला व्यापारी को परेशानी होती है तो महिला चेंबर उसका सॉल्यूशन देता है और सरकार से उस पे बात करता है। जो भी महिलाओं के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं उस पे, जैसे अभी हमारे पास लखपति योजना और ऐसी लखपति दीदी, ये सब योजनाएं सरकार ने बनाई हैं और बहुत लोन्स हम लोग देते हैं। तो महिलाओं के लिए तो हम उसको महिलाओं को एजुकेट करते हैं, क्योंकि आज हमारी इकोनॉमी में 50% महिलाएं हैं। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारी आर्थिक व्यवस्था में। तो जो महिला चेंबर है वो महिलाओं को सशक्त करता है व्यापार के थ्रू, क्योंकि जब तक महिला को नॉलेज नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसमें महिला चेंबर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार्स करते हैं और टॉक शोज़ होते हैं जो महिलाएं अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं। हम बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं जो अपने बारे में बताए। साथ ही साथ हम उन महिलाओं को प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको मार्केट नहीं है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी 6 महीने से मैग्नेटो मॉल रायपुर में दूसरे बुधवार और चौथे बृहस्पतिवार को उन महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया कि वो आएँ, वहाँ पे सामान बेचें और एक अपनी नेटवर्किंग और अपनी सेल बढ़ाएं। तो उसमें हमारे पास आज 6 महीने में तकरीबन 300 महिलाएं हैं जिनका बहुत ही अच्छे से एक सेल और एक बिज़नेस उनका बड़ा, जहाँ पर वो एक अपना समाज में एक अपना नाम कमा रही हैं, अपने परिवार की फाइनेंशियली मदद भी कर रही हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये महिला चेंबर की हर प्रदेश में, जैसे 33 ज़िले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो उसमें एक इकाई होती है हर क्षेत्र में। तो हमारे पास अभी बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, तिल्दा, इसमें और भी कई क्षेत्रों में हमारी इकाइयां हैं जहां महिलाएं मेरे अंडर रह के इस तरह से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और चाहते हैं कि महिलाएं जो व्यापार कर रही हैं वो महिला चेंबर से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए फ़ायदा। और कुछ ऐसी औरतें जो रेडी हैं आपको, अगर जैसे आपके साथ में जुड़ने के लिए, जो आके उन महिलाओं को अगर डिजिटल लिटरेसी देना है या फिनेंशियल लिटरेसी में हेल्प करनी है, तो वो आप लोग के साथ कैसे जुड़ सकती हैं इसमें? वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं और जब भी हम उस विषय पे सेमिनार या जो ट्रेनिंग सेशन और वर्कशॉप्स होते हैं करेंगे तो हम ज़रूर उनको बुलाएंगे और हम बुलाते हैं।